Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty at iExamB. In this video today, we are going to discuss about the mains, that is professional knowledge preparation of IBPS SO Law Officer Examination. Before we start with our discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel, and also you can write to us at hello@iexamb.com anytime. You can reach to us and call on this number directly. आपके अगर कोई भी queries है आप हमें कभी भी contact कर सकते हो. You can visit our website for more details relating to all the government exam preparation courses that are available. This is the only platform that provides you one-on-one sessions, exclusive mentoring, and also free mock tests. So don't forget to take benefit of it and prepare 50% faster with iExamB. So let's quickly start with our discussion. मैंने आप लोगों से एक बात पिछले ही वीडियो में कही थी that IBPS SO Law Officer Scale 1 examination preparation, you have to balance your preparation. Prelims का एग्ज़ाम आपका पहले आने वाला है in the month of December, 24th and 31st of December. But I told you one thing about means preparation that is going to consist of your law syllabus. So that law syllabus you have to not keep it for the last moment. ऐसा नहीं है कि आप जनवरी के मंथ में लॉ सिलेबस की प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे and that will be enough for scoring well. You have to approach the syllabus from the very start. And अभी आपका prelims का जो preparation है वो तो आपको करना ही है, no doubt. अगर आप prelims qualify नहीं करोगे तो you can't reach the mains. But at the same time you have to balance your preparation with mains, with prelims. Prelims आपको qualify करने के लिए जो जो subjects है उनको approach करने के लिए एक strategy अपनानी होगी, and at the same time you have to devote some time for the mains, that is professional knowledge syllabus. So what I have come up with, मैं एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रोफेशनल नॉलेज का जो सिलेबस है वो आपको कैसे अप्रोच करना है. So do visit both of the videos. This is part 1 of the video. Simultaneous and balanced preparation is the key. Prelims and mains you have to balance. This is what is the time where you have to devote your sheer hard work. इसके लिए काफ़ी हद तक आपको डिवोशनल होना होगा, बट दिस इज़ द मेन टाइम विच विल डिटरमाइन वेदर यू विल क्वालिफाई एंड बिकम अ लॉ ऑफिसर और नॉट. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था. हार्डवर्क इज़ इररिप्लेसेबल ओवर हियर एंड यू नीड टू वर्क हार्ड. सो मेंटल प्रेपरेशन आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए. यू हैव टू बी फोकस्ड. सो प्रिलिम्स मेंस को बैलेंस करने के लिए पहले हम लोग एक बार प्रिलिम्स का भी देख लेते हैं सिलेबस. हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस. कॉन्स इज नॉट देयर, सो दैट इज अ गुड एडवांटेज. सो हियर फॉर प्रिलिम्स आई वुड सजेस्ट दैट प्रैक्टिसिंग some subjects will be very important for you. Practicing mock tests will be very important for you. अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें प्रैक्टिस से काफ़ी हद तक डेवलप किया जा सकता है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन पे फॉर एग्जांपल बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में, तो ये सब आप प्रैक्टिस से आसानी से डेवलप कर सकते हो आपकी स्किल्स एंड आपका नॉलेज. एंड आपका टाइम ड्यूरेशन का भी जो प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, वो भी आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो. बिकॉज इन प्रीलिम्स यू जस्ट हैव टू qualify. There is no need to score in prelims. You just have to qualify. तो उस हिसाब से आपका prelims का टाइम आपको डिवाइड करना होगा. You can keep this in the evening maybe and early morning you can give for law. इस तरीके से आप आपका टाइम डिवाइड कर सकते हो. So let us and general awareness जो है बैंकिंग सेक्टर का, वो भी आप इवनिंग के टाइम पे रीड कर सकते हो. iExamB का भी पीडिया भी रेफर कर सकते हो. Now coming to the mains part. Mains again and again as it is discussed, mains marks will be considered for shortlisting for interview and also for the final merit listing. So 80% वेटेज मेंस के मार्क्स को दिया गया है, तो उसका प्रेपरेशन काफ़ी आपको रिलीजियसली करना होगा. एंड यू कैन सी वेयर इज द टफेस्ट पार्ट इज दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 60 क्वेश्चंस इतने वास्ट सिलेबस में से आने वाले हैं. तो आपका प्रेपरेशन किस डायरेक्शन में है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस. 45 मिनट्स में आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ टफ टास्क. यू कैन नॉट डू दिस इन 1 month. सो हाउ यू हैव टू अप्रोच द सिलेबस. सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज टॉपिक्स है उन पे फोकस करो. सिर्फ 60 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑब्वियसली आपको वो पहले करने होंगे. एंड
इन दैट द फर्स्ट इज बैंकिंग लॉज सेगमेंट। तो आप क्या करो, अभी से बैंकिंग लॉज पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बैंकिंग लॉज वैसे भी आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है कॉलेज में। सो यू कैन देर इट इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स थॉरो रीडिंग एज वेल। सो बैंकिंग लॉज इन दैट surface is very important. Negotiable instruments, I would say, is very, very, very important. This act is not that big, so make a balance like this also. NI act छोटा है लेकिन important है, ये भी आप करके रख लो अभी से, surface ही कर लो. Then you can do banking regulations. These are somewhat very much in detail, so try to refer some concise notes for that. iExam is providing you concise notes on all the topics, so try to refer notes of good content, of good source here, बिकॉज आपके पास अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है. बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट इज देयर, दैट यू कैन रेफर वेरी कंसेप्चुअली, यू कैन स्टडी इट. देन बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम ऑल्सो यू कैन जस्ट रीड इट कंसेप्चुअली. दिस इज हाउ रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक एंड FI एक्ट, ये एक एक्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से. सो ये जो पार्ट है आपका, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने बैंकिंग लॉ सबसे ऊपर रखा है. दैट इन दिस ऑर्डर यू हैव टू स्टार्ट विद योर स्टडीज. नाउ इट अगेन डिपेंड्स योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड योर ग्रास्पिंग पावर, कि आप कितना जल्दी क्या क्या कवर करते हो. लेकिन प्रायोरिटी मैं आप लोगों को इन 2 वीडियोज में बताने वाली हूँ. आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन. यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो ये सेक्शन भी थोड़ा सा आपको एग्जॉस्टिवली कवर करना पड़ता है. दिस इज समवट टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. सो ये सब लास्ट मोमेंट के लिए अगर छोड़ोगे तो काफ़ी स्ट्रेस आ जाएगा. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू नाउ. Constitution, of course, is something which you can cover. It looks that constitution will be taking time, but it is not so. Constitution के जो core parts है वो सब करके रख लो, ज़्यादा डिटेल में अभी मत जाओ, लेकिन जो important parts है उसका revision करके रख लो. बाकी का आप लोग in the month of January you can again do it while you are revising. Okay, constitution is not something which is very new, या आपको time लगेगा पढ़ने में. And criminal laws also, the same thing is there. It won't take much time एज कम्पेयर टू बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट लॉ. बट यहाँ से ये दोनों एरियाज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, IPC, CRPC, एविडेंस से, कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले करो. दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू. कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ सेक्शन ऑल्सो देर आर मेनी क्वेश्चंस. देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देर आर मेनी क्वेश्चंस. एंड येस, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फोकस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मॉर्गेज हो गया. मॉर्गेज तो बैंकिंग एग्जामिनेशंस का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है. आप अगर इंटरव्यू में भी जाते हो, मॉर्गेज ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकली इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेलेवेंस, एंड TP एक्ट इज नॉट दैट मच very lengthy. It's not lengthy, so you can do these things. So what will happen like this, you can maintain a balance of lengthy acts and also some important topics even if they are short. जैसे कि मैंने NI एक्ट डाला है इस सेट में, TP एक्ट डाला है. ये इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप इस तरीके से आपका बैलेंस करते हो प्रेपरेशन और इन एक्ट्स को पहले कवर करने की कोशिश करते हो, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. दैट इज़ नाउ नवंबर का मंथ आप इसमें यूटिलाइज करो, दिसंबर का भी टाइम आप इसमें यूटिलाइज करो. ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पहले बता रही हूँ इन दिस पार्ट 1 वीडियो. Arbitration Conciliation Act is a very short topic but an important one. This you can do after doing all these acts, but because arbitration को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको आप प्रायोरिटी ऑर्डर आप ऐसा मेंटेन करो कि जिस ऑर्डर में मैंने दिया है उस ऑर्डर में कंप्लीट करने की कोशिश करो. दिस कैन बी सजेस्टेड सब्जेक्टेड टू योर ओन डिस्क्रिशन कि आपको कैसे कंफर्टेबल है. आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको मेंस के साथ, मेंस का जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स के साथ ग्रेजुअली आपको कवर करना होगा इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन and finally achieve your dream. So for more details and doubts you can reach out to us anytime. We are the expert faculty for legal here. I myself, Miss Amrita Johar, Miss Vidika Bansal and Miss Neha Dubey. So you can contact us, you can write to us at hello@iexambi.com. इस वीडियो के comment section में भी आप you can write to us, and also don't forget to subscribe and prepare 50% faster with iExambi. You need it now. Thank you so much everybody.